Now we will talk about blood vascular system of pigeon, and it comprises of heart, blood vessels and blood. So if we talk about blood comprises of further two portions, plasma and corpuscles. Plasma is with as usual composition of proteins and water and inorganic salts, and corpuscles are of three types: erythrocytes, leukocytes and thrombocytes. Erythrocytes are RBC, which are nucleated and biconvex, and leukocytes are erythrocytes will be red in color because of the presence of hemoglobin. Leukocytes are WBC, and these can be further divided into two portions: granulocyte and agranulocyte. Granulocyte further will be of three types: neutrophil, basophil and eosinophil. And agranulocyte will be of two types, that will be monocytes and lymphocytes. Thrombocytes are स्पिंडल शेप्ड सेल्स विच विल हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. ल्यूकोसाइट्स जो है वो इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करती हैं, एंड थ्रोम्बोसाइट्स दे विल हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. So next we'll talk about heart. So you can see the dorsal view of the heart of the pigeon. Now heart is reddish conical muscular organ, usually very large in comparison to the size of body, and it occupies mid ventral position in the anterior thoracic cavity. thoracic cavity के anterior portion में mid ventral position पर present होता है. It is having a broad base. ये जो upper portion है जो broader है, that is termed as base, and this is termed as apex. Apex is pointed. तो जो broad base है that will lie in the thoracic cavity anterior and facing upward, मतलब आगे की तरफ और ऊपर की तरफ. और जो base है that will lie in the posterior portion and it will face downward and backward. Heart is enclosed in a two-layered transparent sac which is termed as pericardium. Pericardium two-layered होती है. जो inner होगी that is termed as visceral pericardium, और जो outer layer होगी that is termed as parietal pericardium. And between these two layers there will be a cavity which is termed as pericardial cavity. उसके अंदर pericardial fluid होगा, and that the function of that pericardial fluid is to protect heart from any kind of jerk or injury. Shock absorbance का काम करेगा वो. Now we'll talk about the structure of the heart. Structure, it is having two auricles and two ventricle. दो auricle होंगे और दो ventricle होंगे. There will be no sinus venosus, जो कि हम आज तक पढ़ते आए हैं frog में और reptile में, तो कोई भी sinus venosus present नहीं होगा. And there will be no truncus arteriosus. ट्रंकस आर्ट्रियोसिस भी नहीं होगा. सो जो भी आयोटिक आर्चेज होंगी, जो दो मेन आयोटिक आर्चेज होंगी, आयोटिक आर्च एंड पल्मोनरी आर्च, वो सीधा वेंट्रिकल के चैम्बर से निकलेंगी लेफ्ट और राइट से. और जो प्री कैवल्स और पोस्ट कैवल हैं, दे विल लिबरेट देयर कंटेंट, दैट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली इनटू द राइट ऑरिकल. सो दिस इज द डोर्सल स्ट्रक्चर, डोर्सल व्यू ऑफ द पिजन्स हार्ट. सो यू कैन सी दिस इज, ये जो पर्पल कलर में शेडेड है नीचे आपको दिख रहा है, दैट इज लेफ्ट ऑरिकल. इसके इस तरफ है राइट ऑरिकल, एंड देन दिस इज वेंट्रिकल. इसके अंदर दोनों वेंट्रिकल होंगे, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी. नाउ दिस ब्लू स्ट्रक्चर, ये जो आपको बड़ा सा नज़र आ रहा है, इसमें है पोस्टीरियर साइड पर पोस्ट कैवल, आगे की तरफ प्री कैवल्स. प्री कैवल्स में ये लेफ्ट प्री कैवल है और ये राइट प्री कैवल है. इनकी फर्दर आगे जो ब्रांचेज हैं जो इसमें आके ज्वाइन करती हैं, दैट विल स्टडी इन डिटेल ड्यूरिंग द वीनस सिस्टम. And if you are seeing this orange colored structures, these are arteries. So ये जो green color में है, that are pulmonary arteries. ये जो पिंक कलर में आपको दो नज़र आ रही हैं, these are pulmonary veins, जो कि दोनों लंग्स से लेकर आती हैं और राइट ऑरिकल के अंदर ओपन होती हैं, एंड सॉरी लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ओपन होती हैं. एंड ये जो ग्रीनिश स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, दैट आर द पार्ट ऑफ द पल्मोनरी आयोटाज, पल्मोनरी आर्टरीज. एंड ये जो ऑरेंज कलर में आपको फर्दर दिख रही हैं, दीज आर द further diversifications and divisions of the aortic arches of the heart. So this is all about the dorsal view. Next we'll talk about ventral view. Here you can see जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, that is ventricle. ऊपर की तरफ दो ऑरिकल्स नज़र आ रहे हैं, that is left auricle, this is right auricle. and ये जो ऑरेंज स्ट्रक्चर है, these are aortic arches, pulmonary, this is pulmonary and this is aortic arch. and this is precaval, this is left precaval, this is right precaval, this is postcaval. और ये जो डॉटेड में आपको नज़र आ रही है, दैट इज़ डोर्सल आयोटा, जो कि डोर्सल साइड से जा रही है. एंड दिस व्यू इज़ वेंट्रल व्यू, दैट्स वाई इट हैज़ बीन शोन इन डॉटेड स्ट्रक्चर. सो नाउ विल टॉक अबाउट ऑरिकल्स इन डिटेल.
ऑरिकल्स फॉर्म द एंटीरियर 1/3 ऑफ द हार्ट. एज यू कैन सी आगे का 1/3 पोर्शन जो है दैट इज कवर्ड बाय ऑरिकल्स, and these are demarcated from each other by a fat filled interauricular groove. Here you can see एक interauricular groove है जो कि दोनों ऑरिकल्स को डिमार्केट करता है. साथ ही एक ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ग्रूव है जो कि ऑरिकल्स को वेंट्रिकल से सेपरेट करता है. यू कैन सी तो बाहर की तरफ इंट्राऑरिकुलर ग्रूव है और ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ग्रूव है. सो इंटरनली ऑरिकल्स आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय a partition, vertical partition, which is thin and muscular, which is termed as interauricular septum. So this structure, ये जो dark brown सा आपको नज़र आ रहा है ये वाला पीछे से, that is interauricular septum, that is having in its center a thin oval area which is termed as fossa ovalis, which marks the position of foramen ovale of the embryo. मतलब एम्ब्रियो में ये जो दोनों चैम्बर हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं थ्रू एन अपर्चर जो कि एडल्ट में क्लोज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फोसा ओवैलिस. एम्ब्रियो टाइप में जब वो ओपन होता है दैट इज टर्म्ड एज फोरामेन ओवेल. जो राइट ऑरिकल है दैट इज लार्जर देन दी लेफ्ट. यू कैन सी ये लेफ्ट ऑरिकल है, राइट है, तो राइट वाला है ये बड़ा है, लेफ्ट वाला छोटा है. ऑल्सो राइट ऑरिकल के अंदर 3 ओपनिंग होती हैं. यू कैन सी दीज आर ओपनिंग्स ऑफ द प्री कैवल्स. दिस इज लेफ्ट प्री कैवल, दिस इज राइट प्री कैवल, दिस इज पोस्ट कैवल. जो पीछे की तरफ से लेकर आ रही है पोस्ट कैवल वो यहाँ पर ओपन होगी. ये प्री कैवल की ओपनिंग है, ये दूसरी प्री कैवल की ओपनिंग है. ठीक है. नाउ ओनली दिस पोस्ट कैवल ओपनिंग इज गार्डेड बाय अ वॉल विच इज टर्म्ड एज यूस्टेकियन बॉल. यूस्टेकियन बॉल जो है इसकी ओपनिंग को गार्ड करता है. दैट विल प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ बैक फ्लो ऑफ द ब्लड. जब भी ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना कर जाए, तो इसको प्रिवेंट करता है. नाउ if you talk about the left auricle, there is a single opening which is the opening of pulmonary veins. pulmonary veins जो हैं वो इसके अंदर ओपन होती हैं एंड दैट फॉलोज एन ऑब्लिक कोर्स. तो इसका कोई वॉल्व नहीं है इसको गार्ड करने के लिए, दैट इज वॉल्वलेस. तो इसमें एक सिंगल ओपनिंग होती है. दैट वाज ऑल अबाउट द ऑरिकल्स. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल्स आर फॉर्म द 2/3 पोर्शन ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट. हार्ट का 2/3 पोस्टीरियर पोर्शन बनाते हैं. एंड दीज आर सेपरेटेड बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. ये आपको दिख रहा है बीच में, दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. ये इन दोनों को सेपरेट करता है. सो दैट इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल इज हैविंग अ नैरो ल्यूमेन. जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसका जो ल्यूमेन है वो थोड़ा ज़्यादा होगा और सर्कुलर होगा, और जबकि जो राइट वेंट्रिकल दैट विल बी क्रिसेंट्रिक इन क्रॉस सेक्शन. अगर हम इसको यहाँ से टीएस कट करके देखेंगे तो ये क्रिसेंट्रिक होता है, ये कंप्लीट सर्कुलर होगा और बड़ा होगा. ये क्रिसेंट्रिक इसलिए होता है बिकॉज इट इज़ इनसर्कलिंग दिस लेफ्ट पोर्शन. एज यू कैन सी हियर दिस इज लेफ्ट ल्यूमेन, लेफ्ट वेंट्रिकल का ल्यूमेन है, तो दैट इज सर्कुलर एंड लार्जर. और जो राइट वाला है वो दैट इज क्रिसेंट्रिक एंड इट इज़ पार्शियली इंसर्कलिंग दिस लेफ्ट वन. ये इसको इंसर्कल कर रहा है. यू कैन सी कि इसके चारों तरफ से इधर से साइड से इसको इंसर्कल कर रहा है एक साइड से. that is transverse section of the pigeon's ventricles. So okay, next we'll talk about about the walls of the heart. In between auricle and ventricle of the right side, right auricle और right ventricle के बीच में there is a single flap like structure which will act as an valve, that is termed as right auriculoventricular valve, that will be having an aperture in between. Single aperture that will be guarded by right auriculoventricular valve. This valve is very much peculiar of the birds के अंदर ही होता है, ये काफ़ी स्पेसिफिक है ये. इट विल प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू ऑरिकल. जब यहाँ से ब्लड, मतलब ये सिंगल डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो को अलाउ करता है. सिर्फ ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से वापस ऑरिकल में नहीं जाएगा जब भी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. सो in the left corner of the right ventricle you can see there is an opening of an aortic arch. This is pulmonary arch. pulmonary arch है जो आके जाके 2 pulmonary arteries में डिवाइड हो जाती है. and that at the base is guarded by 3 semilunar valve. pocket like 3 valve होते हैं जो कि इसके अंदर जो ब्लड है उसका बैक फ्लो प्रिवेंट करते हैं. तो यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो होगा, यानी कि वेंट्रिकल से इस आर्क के अंदर जाएगा और वापस बैक फ्लो नहीं होगा बिकॉज ऑफ द सेमिलुनार valves. Now next we'll talk about this left ventricle, that is more vascular, you can say more muscular because you can see कि इसकी जो वॉल है इसकी थिकनेस इससे ज़्यादा है राइट वाले से, और इन दोनों की थिकनेस, दोनों वेंट्रिकल की थिकनेस जो है ऑरिकल की वॉल से ज़्यादा है. तो ऑरिकल की वॉल से ये वाली वॉल जो है वो ज़्यादा मस्कुलर होंगी, और इन दोनों में भी जो लेफ्ट वाला है उसकी वॉल्स जो हैं वो ज़्यादा मस्कुलर होंगी.
Now that is having two flap like structures which will form bicuspid valve at the auriculoventricular aperture. जो लेफ्ट वाला auriculoventricular aperture होगा उसके अंदर bicuspid valve होगा which is also termed as mitral valve. mitral valve भी बोलते हैं. सो दीज वॉल्व, इनकी जो वेंट्रल फ्लैप है जो कि इसको फेस करती है वेंट्रिकल की तरफ, दैट विल बी अटैच्ड बाय elongated elastic fibers. You can see these are termed as chordae tendineae and they will attach the ventral portion of these flaps, mitral valve, to the musculi papillaris. ये जो हैं मसल्स, these are termed as papillary muscle या musculi papillaris. ये जो पिरामिड शेप आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं. एंड एट द राइट कॉर्नर ऑफ द लेफ्ट ventricle there is another opening which is guarded by again 3 semilunar valve. You can see the 2 here, 1 and 2, and this is termed as aortic arch जो कि फर्दर डिवाइड करके ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करती है. अब नाउ लेफ्ट ऑरिकल से जो ब्लड है वो राइट ऑरिकल में जाएगा. अब लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड है वो कहाँ से आया है? लंग्स से. दैट इज़ प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड और वो यहाँ से यहाँ आएगा. यहाँ से क्या है? आयोटिक आर्च में जाएगा और दैट विल बी सप्लाई टू द होल बॉडी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट.